ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେପୋଲିଅନ୍ କନସଲଟେସନ୍ ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର BA ହିଷ୍ଟ୍ରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର 5th ସେମିଷ୍ଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। Napoleon Bonaparte was born at Ajaccio in the island of Corsica in 1769. Napoleon Bonaparte ଯାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1769 ମସିହାରେ ଆଜେସିଓ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କୋର୍ସିକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟସ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଇଟାଲିଆନ୍ସ। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ପିତୃପୁରୁଷ ଇଟାଲିଆନ୍ ଜାତିର। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ସ୍ପୋକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ କହିବାର ଆସୁଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କହିବା। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ attended military school at Brienne and in Paris. ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସମୟରେ ମିଲିଟାରୀ ସ୍କୁଲ ବ୍ରାଇନେ ପ୍ୟାରିସର ମିଲିଟାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ମିଲିଟାରୀ ସ୍କୁଲର ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। And Napoleon Bonaparte joined the France army when he was only 16 years old. ଯେତେବେଳେ କେବଳ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେହି 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନେପୋଲିଅନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ଥଳବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବା ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। Napoleon Bonaparte supported to Jacobins during the time of France Revolution in France. 1789 France Revolution ହେଇଥିଲା। ସେହି ଫ୍ରାନ୍ସ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜେକୋବିନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟୁ ତୌଲନ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଆଟାକ୍। ଯେତେବେଳେ ସେନା ଛାଉଣୀରେ ସେନାବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ତୌଲୁନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ନେପୋଲିଅନ୍ ସେହି ତୌଲୁନ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର କବଳରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ଫାଲ୍ ଅଫ୍ ରୋବେସ୍ପିୟର ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରିଜନ୍। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରୋବେସ୍ପିୟରଙ୍କର ପତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କୁ। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ନାଉ ଟୁ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଉଲ ବାର୍ସ and director Lazare Carnot. Impressed by the Napoleon for his military ability, so the director Lazare Carnot appointed to Napoleon Bonaparte as the commander of the Italian expedition by expedition ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସର 2 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ହେଲେ ପାଉଲ ବାରସ ଏଣ୍ଡ ଲାଜାରେ କାର୍ନୋଟ। ଲାଜାରେ କାର୍ନୋଟ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାର ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିଥିଲା ଇଟାଲୀ ବିରୋଧରେ, ସେ ସମୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲାଜାରେ କାର୍ନୋଟ ନେପୋଲିଅନଙ୍କୁ ସେହି ସେନାବାହିନୀର କମାଣ୍ଡର ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଏବିଲିଟିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି। Napoleon Bonaparte out to Austrians from the southern Italy
with the use of brilliant victories. नेपोलियन बोनापार्ट जेतेबेले सेनाबाहिनी दायित्व नहीं से समय ऑस्ट्रियन माने साउथ इटाली रे प्रवेश करथिले। साउथ इटाली रु नेपोलियन बोनापार्ट ऑस्ट्रियन माननकु विजयर सहित बाहर करिवार सफलता लाभ करथिले। या थिला नेपोलियनकर गोटिए कृतित्व। नेपोलियनकर जीवन काल भितर अनेक से बैटल को सम्मुखीन करचंती। से भितर रहला द बैटल ऑफ पिरामिड्स। बैटल ऑफ पिरामिड्स हितला। दिस बैटल वाज हेल्ड ऑन जुलाई 21, 1789। ये बैटल ऑफ पिरामिड टी 1799 मसीह जुलाई मास 21 तारिख रे होइतिला। नेपोलियन बोनापार्ट फाउट विथ इजिप्ट एंड विक्टोरी ओवर इजिप्ट। ये जो बैटल ऑफ पिरामिड टा नेपोलियन बोनापार्ट बा फ्रांस आउ इजिप्ट भितर होइतिला। नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्ट को युद्ध रे पराजय वरण करथिले एवं विजय लाभ करथिले। डेट उडियो मन रखिबे। बैटल ऑफ पिरामिड केवे होइतिला प्रश्न ही पारे। जुलाई 21, 1799। तापर नेक्स्ट बैटल द बैटल ऑफ नील। बैटल ऑफ नील को से मध्य फेस करथिले नेपोलियन। केवे होइतिला बैटल ऑफ नील जानिबा। दिस बैटल वाज हेल्ड ऑन 1 अगस्त 1789। जुलाई रे सरला। 1799 मसीहा अगस्त मास 1 तारिख रे मध्य गोटिए बैटल होइतिला। से बैटल को कहा जाउछि नाइल बैटल। इन दिस बैटल नेपोलियन बोनापार्ट सेट बैक। ए बैटल रे नेपोलियन बोनापार्ट ऊपर आक्रमण होइतिला। से पछगुंचा देइथिले। इन दिस बैटल लॉर्ड नेल्सन डिस्ट्रॉयड द फ्रांस फ्लीट एट आबुकिर्बे। आबुकिर्बे समुद्र कूलरे समुद्र कूलरे नेल्सन फ्रांस रो युद्धपोत उपरे नौका उपरे आक्रमण करथिले। किंतु सेही ठारू नेपोलियन खसी जाई फ्रांस को पळै जाइथिले। ए बैटल ऑफ नाइल रे नेपोलियन बोनापार्ट रिटर्न टू फ्रांस एंड फ्रांस पीपुल वेलकम टू नेपोलियन बोनापार्ट आज ए हीरो। सफल होई नथिले नाइल रे। से लुचिकी पळैथिले कौनसी कौशलवशत। तथापि तांकर दक्षता जोगु फ्रांस रो लोक माने सत जमी तांकर राज्यर जने हीरो आगमन नहीं स्वागत करथिले। किंतु नेपोलियन बैटल ऑफ लाइन रु लुचि पळै जाई फ्रांस रो डायरेक्टर मानकु एही विफलता पे दायी करथिले। किंतु फ्रांस रो जनसाधारण नेपोलियन दक्षता पे तांको हीरो परि सम्मान देइथिले। तापर आलोचना करिबा लोदी ब्रिज बैटल। लोदी ब्रिज मध्य से क्रॉस करथिले नेपोलियन। ही क्रॉस लोदी ब्रिज ऑन 10th May 1796 फॉर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को अधिकार करिया पे से 10 तारिख मे मास 1796 मसीह लोदी ब्रिज को क्रॉस करथिले। परीक्षा रे आसुची बेले बेले प्रश्न इन व्हिच ईयर नेपोलियन क्रॉस लोदी ब्रिज 1796। 1796 हो तार उत्तर। दिस बैटल नेम टू नेपोलियन आज लिटिल हीरो। एटा पिला माने जॉइन एंड माथुर पुस्तक रे देछि। आज समस्त संग्रह बीबी राव वर्ल्ड हिस्ट्री जॉइन एंड माथुर वर्ल्ड हिस्ट्री रु संग्रह करछि। लिटिल हीरो को बैटल कर देथिला एही नांटी नेपोलियन पई ना लोदी ब्रिज बैटल। एटा गोटे बहुत कठिन और संघर्षमय बैटल थिला। यह नेपोलियन को नूतन नामकरण करैथिला लिटिल हीरो बोली। एंड आल्सो नेपोलियन रिलीज टू मिलन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। नेपोलियन मिलेन रे प्रवेश करथिले। मिलेन शहर रे जहाँकि ऑस्ट्रिया मानकर अधीन रे शासित होतुला ताकु मध्य निज अधीन को आनिथिले। इन 1799 इन 1801 directory system declined and at its end करिवे Napoleon Bonaparte declared France would be governed by the consulate and 3 consulate appointment. Napoleon Bonaparte was the first consul, but after Napoleon Bonaparte became consul for life. 1799 मसीहा
बा 1801 मसीह नेपोलियन बोनापार्ट जी कि फ्रांस रे आगुरी प्रचलित डायरेक्टरी व्यवस्था शासन व्यवस्था को से कौन कले घोषणा कले जे तार पतन होला एवं फ्रांस रे से गवर्नर कले सरकार कन्सुलेट सरकार तैयार कले जहाँकि कन्सुल्स मान द्वारा शासित हम 3 जन कन्सुल्स को से नियुक्ति कले। नेपोलियन होउचंदी प्रथम कन्सुल्स किंतु परवर्ती समय पर नेपोलियन सारा जीवन पे कन्सुल होकर फ्रांस रे शासन कले। तापर देखिबा रिपब्लिक एस्टाब्लिशमेंट नेपोलियन बोनापार्ट एस्टाब्लिश रिपब्लिक्स इन इटली जर्मनी एंड बेल्जियम। नेपोलियन बोनापार्ट जेतेबेले निजको आग को बढ़िबार लगी बढ़ई बढ़ई नहीं से कौन करथिले रिपब्लिक सरकार प्रतिष्ठा करथिले साधारणतंत्र प्रतिष्ठा करथिले कोठे इटाली रे जर्मनी रे आउ बेल्जियम रे। एठू जना पड़ुछि जे नेपोलियन बोनापार्ट जने दक्षतापूर्ण व्यक्तित्व। एंड आल्सो वी शुड डिस्कशन अबाउट द लुइसियान टेरिटोरी। नेपोलियन लुइसियान अंचल सहित कौन संपर्क? नेपोलियन बोनापार्ट obtained this area after loss of 7 years war. Spain करिवे Spain gave this territory to the France for compensation. जेतेबेले सप्तवर्षी युद्ध चलथिला फ्रांस और स्पेन मध्य से सप्तवर्षी युद्ध रे फ्रांस रो विजय होइतिला स्पेन रो पराजय होइतिला। सही युद्धर क्षय क्षति को पूर्ण करिया पई स्पेन कौन करतिला युद्ध कंपेनसेशन क्षय क्षति पूर्ण पई लौसियान अंचलटी फ्रांस को देइथिला गिफ्ट करथिला। एही परि भाव रे लौसियान टेरिटोरीटी नेपोलियन को हाथ को आसी जाइथिला। आफ्टर दिस इवेंट नेपोलियन बोनापार्ट वाज भोटेड कन्सल फॉर लाइफ इन 1802। यही जो लौसियाना अंचल को नेपोलियन कौशल क्रमे हाथ मुठा को आनिथिले यह तांकर गोटे महान कृतित्व रहितिला। यह परे फ्रांसवासी तांको ऊपर खुशी हो जाइतिले। 1802 मसीह नेपोलियन बोनापार्ट को सारा जीवन पई फ्रांस रो कन्सुल भाव रे घोषणा कर दिया जाइथिला। वर्तमान आम आलोचना करिबा नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस रो एम्परर किमिति हेले? पोप पियूस 7 क्राउन्ड नेपोलियन बोनापार्ट द एम्परर ऑफ फ्रांस ऑन 2 डिसेंबर 1804। अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पिलाने अनेक परीक्षा आसूची नेपोलियन बोनापार्ट को किए सम्राट रूप में भूषित कले बा घोषणा कले? पोप पियूस 7 फ्रांस जी कि नेपोलियन को सम्राट बोली फ्रांस रो घोषणा कले 2 डिसेम्बर 1804। केबे हितिले मध्य सम्राट बोली आसूची ता पूर्वरु से कन्सल थिले, ता पूर्वरु आर्मी रो ऑफिसर थिले कमांडर, ता पूर्वरु आर्मी रे साधारण भाव में नियुक्ति होते किंतु 1804 मसीहा डिसेम्बर मास 2 तारिख रे से फ्रांस रो सम्राट हेबार सौभाग्य अर्जन करथिले। सम्राट हेला पर एम्बिशन ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट लक्ष्य कौन थिला? हिज एम्बिशन वाज यूनाइटेड द कंट्रीज ऑफ यूरोप। से भाविथिले जे यूरोप रे जेते देश अछि समस्त को लेकर गोटे देश बनइबे। किते बड़ एम थिला तांकर। फ्रांस इज द लीडर ऑफ यूरोप। से जो देश बनइबे से देशर लीडर हम फ्रांस, माने फ्रांस प्रतिनिधि रे गोटे देश हम। अटैक एंड कन्क्वेस्ट ऑस्ट्रिया एंड कैप्चर टू वियना एंड ऑफ द होली एम्पायर, होली रोमान एम्पायर। से चाहूले ऑस्ट्रिया को आक्रमण करेंगे एवं अधिकार करेंगे वियना को एवं होली रोमान एम्पायर शासन को मध्य
से समाप्त करेंगे से भी करथिले। पोपंकर भाटिकान सहरटी को छाड़ी दे नेपोलियन से आउ सब करिवारे सफल मध्य हेइथिले। ही वांट टू द किंग ऑफ इटली से इटाली रो राजा हेबा पे चाहिथिले हेइथिले मध्य कमांडर रु से राजा मध्य इटाली रो हो जाइथिले। तापर हम आलोचना करिबा बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज। ऑस्ट्रेलिज बैटल कौन? द बैटल वाज हेल्ड ऑन 2 डिसेंबर 1805। 1805 मसीहा डिसेंबर मास 2 तारिख रे बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज होइथिला पिला मान। एडा मध्य नेतृत्व नैथिले नेपोलियन। तापर होइथिला ट्रीटीज ऑफ टिलसिट ऑन जुलाई 1807। ट्रीटी गोटे होइथिला 1807 रे टिलसिट नामक गोटे चुक्ति मध्य होइथिला नेपोलियनकर नेतृत्व रे। आमे जो आलोचना करछुनी नेपोलियनकर कृतित्व गुड़िक जो तापर से आलोचना करिबा किंगशिप टू ब्रदर्स बा ब्रदर्स। नेपोलियनकर आउर भाई माने थिले से भाई माननको मध्य स्टैंड करथिले राजा करैथिले विभिन्न अंचल रे। तापर आलोचना करिबा दिस ट्रीटी वाज हेल्ड ऑन जुलाई 1807। कोडा पिला माने ए ट्रीटीडा आगर बीडा लिखिबे 20 रो बी डू लिखिबे। लुइस होउचंती नेपोलियनकर भाई। ही इज द ब्रदर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। लुइस बिकेम द किंग ऑफ हॉलैंड। नेपोलियन निज भाई लुइस को हॉलैंड रो राजा करैथिले। सेकंड होची जोसेफ। ही इज द ब्रदर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ही बिकेम द किंग ऑफ नापेल्स एंड किंग ऑफ स्पेन इन 1808। जोसेफ होउचंती नेपोलियनकर अन्यतम जने भाई जी कि नापेल्स रो राजा होइतिले एवं 1808 मसीह रे स्पेन रो राजा हेबार सुजोग मध्य पाइथिले। तापर आसिला जेरोमी। ये भी जन होउचंती नेपोलियन को भाई से मध्य वेस्टफालिया रे राजा होइतिले। ही इज द ब्रदर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एंड ही बिकेम द किंग ऑफ वेस्टफालिया। तापर हम आलोचना करिबा मैरिज लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियनकर विवाहिक जीवन। जोसेफाइन होउचंती नेपोलियनकर पत्नी। सी मैरिड विथ नेपोलियन बट सी डाइवोर्स टू बाय नेपोलियन फॉर सी कुड नॉट गिव हिम ए सन। जोसेफाइन सहित नेपोलियनकर विवाह होइतिला किंतु नेपोलियन और जोसेफाइन मध्य विवाह विच्छेद होइतिला। काहेकि ना से गोटे पुत्र संतान नेपोलियन को दे पारिले नाही। यही कारण को नहीं नेपोलियन जोसेफाइन को छाड़पत्र देइथिले। सेकेंड है मेरी लुइस। सी मैरिड विथ नेपोलियन। सी इज द डॉटर ऑफ द एम्परर ऑफ द ऑस्ट्रिया। मेरी लुइस होउचंती सम्राट नेपोलियनकर अन्य जने पत्नी द्वितीय पत्नी। से नेपोलियन सहित विवाह करथिले। से होउचंती ऑस्ट्रिया सम्राटंकर राजकुमारी बा ऑस्ट्रिया सम्राटंकर कन्या। यह थिले नेपोलियन बोनापार्टଙ୍କ वैवाहिक जीवन। तापर हम आलोचना करिबा कनक्वेस्ट ऑफ नेपोलियन। इन 1807 इन्वेंटेड टू पोर्तुगाल। 1807 मसीह रे नेपोलियन बोनापार्ट पोर्तुगाल को आक्रमण करथिले। इन 1808 इन्वेंटेड टू स्पेन। 1808 मसीह रे नेपोलियन बोनापार्ट स्पेन को आक्रमण करथिले। इन सेप्टेम्बर 7 1812 बैटल ऑफ बर्डिनो विथ मॉस्को। सेप्टेम्बर मास 7 तारिख 1812 मसीह रे बैटल ऑफ बर्दिनो मॉस्को सहित लड़ीथिले नेपोलियन। एंड द वेनिस सरेंडर टू नेपोलियन। वेनिस सहर नेपोलियन पाखरे शरण पशिथिले। नेपोलियन ताकु मध्य अधिकार करथिले। ही एस्टाब्लिश्ड लिबरल डेमोक्रेसी इन
ଜିନୋଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନେପୋଲିୟନ ଉଦାରବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସିସ୍ ଆଲପାଇନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ୍ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଟାଲୀ, ଇଟାଲୀର ନର୍ଥରେ ଆଉ ସେଣ୍ଟରରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ସେ ସିସ୍ ଆଲପାଇନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇପିଜ୍। In this battle, Napoleon fought with the combined force of Austrians, Prussians, and Russians. After this battle, Napoleon lost his throne and punished by the enemies. Battle of Leipzig। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତିନୋଟି ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମାନଙ୍କର, ରୁଷିଆ ମାନଙ୍କର ଆଉ ରୁଷିଆର ମିଳିତ ଭାବରେ ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ବା ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାଟେଲ ପରେ ନେପୋଲିୟନ ନିଜର ରାଜସିଂହାସନ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ଲଷ୍ଟ ଥ୍ରୋନ୍ ନେପୋଲିୟନ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଲ୍ବା। ଏହି ବ୍ୟାଟେଲ ପରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନେପୋଲିୟନକୁ ଏଲ୍ବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ଲୁଇସ୍ 18 କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ପଢ଼ିବା। ଆଫ୍ଟର ନେପୋଲିୟନ ଦ ଏନିମିସ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଲୁଇସ୍ 18 ଆଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଲୁଇସ୍ 18କୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏହି ଯେଉଁ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍, ପ୍ରୁସିଆନ୍, ରୁଷିଆନ୍ ଏନିମିସ୍ ମାନେ। ନେପୋଲିୟନ୍ସ ଇସ୍କେପ୍। ନେପୋଲିୟନ କେମିତି ଲୁଚିକି ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେପୋଲିୟନ ପିଲାମାନେ ଏଲ୍ବାରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ହି ଇସ୍କେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଲ୍ବା ଅନ୍ ଫେବୃଆରୀ 26, 1815 ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ରାନ୍ସ କୋଷ୍ଟ। ନେପୋଲିୟନ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଲ୍ବା ଦ୍ୱୀପକୁ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ କୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ସେନାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେ ନିଜର ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟରଲୁ, ଦ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଫର୍ ନେପୋଲିୟନ। ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟରଲୁ। ଆଫ୍ଟର ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଏଲ୍ବା, ନେପୋଲିୟନ ଫାଉଟ୍ ଦ ଫାଇନାଲ ବ୍ୟାଟଲ୍। ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ୱାଜ୍ ୱାଟରଲୁ, a few mile away from the Brussels of at Waterloo। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ନାଁ ୱାଟରଲୁ କାହିଁକି ହେଇଛି? କାହିଁକି ୱାଟରଲୁ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ଏହି ୱାଟରଲୁ ଅଞ୍ଚଳଟି ବ୍ରସେଲ୍ସର କିଛି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହେଇଥିଲା। ଏହା ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ବ୍ୟାଟେଲ ଥିଲା ନେପୋଲିୟନଙ୍କର। ଇନ୍ ଦିସ୍ ବ୍ୟାଟେଲ ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଦ କ୍ୟାରିୟର ଅଫ୍ ନେପୋଲିୟନ। ଏହି ବ୍ୟାଟେଲଟା ନେପୋଲିୟନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା। ମାନେ ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲା ସମ୍ରାଟ, ତାକୁ ସେ ପତନ କରାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରିଜନର ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ନେପୋଲିୟନ। ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ। ନେପୋଲିୟନ ସ୍ପେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରିଜନର ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇନ୍ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଷ୍ଟି ହେଲେନା। ନେପୋଲିୟନ ୱାଟରଲୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ୱାଟରଲୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସେ ଏଷ୍ଟି ହେଲେନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ରାଟ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ନେପୋଲିୟନ। ନେପୋଲିୟନ ପାସ୍ଡ ଏବେ ଇନ୍ 1821। 1821 ମସିହାରେ ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ପତନ ହେଲା ବା ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ବନ୍ଦୀ ଥାଇକି। ରିଫର୍ମ ଅଫ୍ ନେପୋଲିୟନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେପୋଲିୟନ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୋଡ୍ ଅଫ୍ ଲ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ହି ଫ୍ରେମ୍ଡ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଡେଲ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ନେପୋଲିୟନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସର କୋଡ୍ ଅଫ୍ ଲ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବନା ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ କଲେ, ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିଲେ, ଯାହାକି ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ସୋସାଇଟି।
यही कोड ऑफ लॉ द्वारा से गोटे नूतन समाज प्रतिष्ठा करने चाहूले आ सफल होते। क्रिमिनल एंड कमर्शियल कोड इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस फॉर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी फ्रांस रो अर्थनैतिक अभिवृद्धि करने अर्थनैतिक अभाव समाधान करने क्रिमिनल एंड कमर्शियल कोड से आनी फ्रांस रे लागू करथिले। नेपोलियन बोनापार्ट मेड फ्रेंडली रिलेशन विथ द भाटिकान रो पार्श्ववर्ती अंचल सब अधिकार कर देइथिले, किंतु पोप जोड़े रोते मेजर प्लेस भाटिकान को सहित से उत्तम बंधुत्वपूर्ण संपर्क प्रतिष्ठा करथिले। द ट्रिटी ऑफ कॉन्कॉर्डेट हेल्ड बिटवीन नेपोलियन एंड पोप ये भाटिकान अंचल गुड़ी सुरक्षित रखापी एवं पोपंकर आशीर्वाद लाभ करने नेपोलियन ट्रिटी ऑफ कॉन्कॉर्डेट करथिले पोपंक सहित नेपोलियन कहीं नेपोलियन जानी धर्मर जदि हाथ मारे समस्या हो, तेणु से पोपंक प्रति गोटे ट्रिटी करी कौन से आक्रमण कर। ही एस्टाब्लिश द बैंक ऑफ फ्रांस इन 1800 बहुत गुरुत्वपूर्ण। बैंक ऑफ फ्रांस केबे हितला प्रश्न आसुची 1800 मसीह। नेपोलियन बोनापार्ट 1800 मसीह नेशनल बैंक प्रतिष्ठा करथिले बैंक ऑफ फ्रांस लोक मानक आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ करने एंड टैक्स वर लिवाइज्ड ऑन द बेसिक ऑफ वन्स एबिलिटी टू पे कर से जबरदस्त संग्रह करुनथुले। जन व्यक्तिंकर जेते कर देवार क्षमता अच्छी क्षमता अनुजाई कर प्रदान करिवार नियम से आनी। ही स्टॉप्ड द करप्शन तांको शासन समय से करप्शन को बंद कर पारिथिले और सफल होते कहीं पूर्वर तार अर्थ करप्शन चलता लुइस 14, 15, 16 शासन समय करप्शन गवर्नमेंट थिला किंतु नेपोलियन ताकू दूर करथिले। ही ग्रांटेड फंड्स फॉर पब्लिक वर्क सर्वसाधारण उन्नति से मध्य निवेश करुले समाज उन्नति करने से प्रयास करुले। एंड आल्सो ही ब्यूटिफाइड द पेरिस सिटीज पेरिस सहर को से गोटे यूरोप सुंदर सहर में परिणत कर देइथिले। ही स्टैंड बिल्डिंग्स पब्लिक पार्क्स ब्रिजेस से बहुत बड़ बड़ कार्यालय बिल्डिंग मान निर्माण करथिले, पब्लिक पार्क निर्माण करथिले, उद्यान गुड़िक एवं ब्रिजेस सेतु गुड़िक निर्माण करथिले, पब्लिक वर्क गुड़िक भी भल करथिले। नेपोलियन को शासन समय एजुकेशन को आम आलोचना करवा शिक्षा कौन थिला। ही फ्री टू स्कूल फ्रॉम चर्च हैंड विद्यालय गुड़िक चर्च हाथ में रही धर्म अनुष्ठान हाथ में विद्यालय को धर्म अनुष्ठान हाथ काढ़ी ने विद्यालय कथा निजे बुझिले। ही फाउंडेड पब्लिक स्कूल्स गुड़िए पब्लिक स्कूल्स प्रतिष्ठा से कले जनसाधारण शिक्षा उद्देश्य। ही फाउंडेड द इंपेरियल यूनिवर्सिटी इन 1808 1808 मसीह नेपोलियन बोनापार्ट इंपेरियल यूनिवर्सिटी फ्रांस रे प्रतिष्ठा करथिले। ही फाउंडेड एकेडमी ऑफ साइंस विज्ञान क्षेत्र में उन्नति आने से कौन करथिले एकेडमी ऑफ साइंस मध्य प्रतिष्ठा करथिले। यह थिले शिक्षा व्यवस्था रे संस्कार नेपोलियन। बर्तमान आम चाहिए जानिबा हनर्स 1802 रे से सम्मान देउथिले कौन कौन क्षेत्र में कार्य करुथिले ताको आलोचना करबा। जो व्यक्ति माने कौनसी दक्षतार निपुण थिले एवं कृतित्व करुथिले तांको सम्मान दिया जाउतला नेपोलियन का शासन समय। ही एवार्डेड टू साइंटिस्ट नेपोलियन बोनापार्ट वैज्ञानिक मानक सम्मानित करुथिले। सोल्जियर्स कृतित्वपूर्ण सामरिक अधिकारी और सैनिक मानक मध्य से उपहार दौले। आर्टिसियंस जो माने उत्तम आर्ट करुथिले तांको मध्य से उपहार दौले विथ कैश अवार्ड से कैश दौले टंका दौले। एंड ओवरसीज एम्पायर फॉर फ्रांस समुद्र पथर जाई को अंचल को से अधिकार करथिले ताको आलोचना करबा। ये सब आम आलोचना कले कृतित्व। ही ऑक्युपाइड लौसियाना
लौसियान अंचल को से अधिकार कर नहीं। एवं आलोचना करवा सेंट्रलाइज ऑफ फ्रांस एडमिनिस्ट्रेशन। से फ्रांस रो शासन व्यवस्था को सेंट्रलाइज करथिले। ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स फॉर स्टेट्स जेते नुआ नुआ स्टेट से अधिकार करथिले सबगुड़िकर शासन पे ऑफिसर मानक नियुक्ति करथिले। ही ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द सिटी म्युनिसिपालिटीज। सहर गुड़ी को म्युनिसिपालिटी गुड़ी को से स्वायत्त शासन पर अनुमति देइथिले, ऑटोनॉमी की अनुमति देउथिले। इंपोर्टेंस ऑफ नेपोलियन एरा ऊपर आलोचना कर। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द चाइल्ड ऑफ द रिवोल्यूशन। अनेक परीक्षा आसी चाइल्ड ऑफ द रेवोल्यूशन क्या कहुच्छी, प्रायतः एसएसबी परीक्षा आसी। नेपोलियन निजक कहते से होउछन्ति फ्रांस विप्लवर संतान। ट्राई टू बिल्ड ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप। यूरोप रो सब देश को लेकिन गोटे देश करने से चेष्टा करते। फ्रांस को से भीतर लीडर करने चेष्टा करते। एंड ही इज द प्रिकुर्सर ऑफ बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन विचक्षण बुद्धि थे? बिस्मार्क पूर्वर नेपोलियन आविर्भाव होता। आ से विचक्षण जड़े कूटनीतिज्ञ एवं युद्ध विजयकारी थे। मैं आशा करुच्ची मोर ये आलोचना आपण मानकर भविष्य निर्माण में सहायक हो। वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं समस्त छात्र छात्री गण शेयर करूँ। वंदे उत्कल जननी।